Good afternoon, respected participants. Myself, Jui Datta Ghosh, Quality Nurse Coordinator under the Department of Hospital Administration, SCPJIMS. Today, I would like to begin our discussion on a topic that lies at the very heart of critical care nursing, the care of invasive lines. Invasive devices such as central venous catheters, arterial lines, endotracheal tubes, and urinary catheters, temporary transvenous pacing, etc., are life-saving tools in modern healthcare. However, when not cared for properly, these same devices can become a major source of healthcare-associated infections, leading to increased morbidity, mortality, and antibiotic resistance. Invasive lines directly breach the body's natural defense barriers. Therefore, nurses plays a crucial role in preventing device-associated infections through meticulous care, aseptic practices, and constant vigilance. Recent Indian data highlights the seriousness of these issues. A landmark study published in the Lancet Global Health and reported by the Indian Express revealed alarming rates of clepsy in Indian ICUs. On an average, 9 clepsy cases occur per 1,000 central line days. Adult ICUs reported 8.7 cases per 1,000 days. Pediatric ICUs reported 6.7 cases per 1,000 days, and neonatal ICUs recorded the highest burden with 13.9 cases per 1,000 days. These figures clearly show that the most vulnerable populations, especially neonates, suffer the greatest consequences when invasive lines are not managed appropriately. Researchers from AIIMS Delhi and collaborating centers in Chandigarh, Mumbai, Chennai, Vellore, Kochi, and Srinagar have also emphasized a critical challenge: the lack of comprehensive data on bloodstream infections in low and middle income countries. This gap has significantly limited the development of effective country-specific infection prevention policies, making the role of trained nursing professionals even more vital. Dr. Camila Rodriguez, consultant microbiologist at PD Hinduja Hospital, Mumbai, described Professor Mathur's effort to mobilize a large public-private hospital network to monitor device-associated infections as sterling. This initiative underscores the importance of standardized nursing practices in caring for central lines, ventilators, and urinary catheters. Adding to this, Dr. Kopil Jirpe, head of the Neuro Trauma ICU at Ruby Hall Clinic, Pune, stressed the urgent need for antimicrobial stewardship, adequate staffing, regular training audits, and strict infection prevention practices across ICUs and operation theaters. These measures are impossible to implement successfully without well-trained and accountable nursing care. The consequences of poor invasive line care are not limited to bloodstream infections alone. In another study led by Professor Mathur and colleagues published in the Lancet in 2024, 261 ventilator-associated pneumonia events were recorded over 40,533 ventilated days. The VAP rate was 6.4 per 1,000 ventilated days. These findings remind us that bad nursing care of invasive lines can lead to prolonged hospital stays, higher treatment costs, increased antibiotic resistance, patient suffering, and even death. Conversely, good nursing care saves lives. So, the care of invasive lines is not merely a technical skill, it is a professional responsibility and an ethical duty.
Through strict adherence to aseptic techniques, bundle-based care, continuous education, and accountability, nurses can significantly reduce health care associated infections and improve patient outcomes. With this understanding, let us move forward to explore the types of invasive lines and the best nursing practices required to care for them safely and effectively. Our today's speaker, Ms. Sorita Kumari, she has been serving in the Department of Post-Operative Care Unit at SGPGIMS since 2005 as a senior nursing officer. Prior to joining SGPGIMS, she worked in IGIMS, Patna, Bihar. Sarita Kumari achieved Best Nurse Award 2005 from her department and has delivered lectures on nursing at Doordarshan. Please join me in welcoming Ms. Sarita Kumari to begin today's session. Over to Sarita. Thank you, June. आज का जो टॉपिक है केयर ऑफ इन्वेसिव लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसे सिंपल लैंग्वेज में पहले हम जानेंगे कि इन्वेसिव लाइंस क्या है। जब कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें ओरल ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि वो ओरल ड्रग से रिकवर नहीं कर रहा होता है तब उन्हें इन्वेसिव लाइन की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज इन्वेसिव लाइन? इन्वेसिव लाइन इज अ medical device or a plastic tube which is inserted into the patient's body through the natural orifice or the incision. What is the purpose of invasive line? The main purpose of invasive line is to administer drug, blood, total parenteral nutrition, EC, to drain the content and to monitor the function. Why its care is so important? Its care is so important because speedy recovery of the patient, to secure the tube, keep tube accidental removal ना हो जाए patient को जो tube लगा है, secure the tube and to prevent the infection. According to clinical purpose and insertion site, इन्वेसिव लाइन को ऐसे कैटेगराइज किया गया है जैसे कि एयरवे में जो एयरवे ट्यूब्स जो पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करता है उसे एयरवे ट्यूब्स के अंतर्गत रखते हैं, जैसे एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, नेजोफेरिंजियल एयरवे इत्यादि। इसके बाद है सेकेंड है वेस्कुलर एक्सेस ट्यूब। वेस्कुलर एक्सेस ट्यूब जैसे पेरिफेरल एंड सेंट्रल वेनस कैथीटर, आर्टेरियल लाइन, डायलिसिस कैथीटर, इत्यादि। फिर है जो ट्यूब हम फीड के लिए यूज करते हैं जैसे गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जेजनोस्टोमी ट्यूब, मेडिकेशन के लिए और पेशेंट को फीड देने के लिए जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो ट्यूब डालते हैं वो गैस्ट्रिक ट्यूब के अंतर्गत आता है। फिर है यूरिनरी कैथीटर्स। यूरिनरी कैथीटर्स है इंजॉइनिंग कैथीटर जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं या जिन्हें मूव करना पॉसिबल नहीं है उन पेशेंट को यूरिनरी कैथीटर डाला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्यूब इन्वेसिव लाइन होते हैं, जैसे कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उन्हें टीपीआई, पीपीआई डाला जाता है, टेम्पररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, तो ये भी एक तरह से इन्वेसिव लाइन है। फिर है कि जो पेशेंट गैस्ट्रो होते हैं उन्हें स्पेशल ड्रेन डाले होते हैं, या फिर जो कार्डियक थोरेसिक ड्रेन और यूरिनरी पीसीएन, ऐसे अलग अलग पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्यूब्स इन्वेसिव लाइन डले होते हैं। लेकिन ये मेन हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होता है कि वेस्कुलर लाइन, कि जब पेशेंट यदि जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो हम कहते हैं कि चलो उसका एक आईवी लाइन ले लेते हैं ताकि हमें कोई भी मेडिकेशन देना हो तो हमें इजी लगे। तो invasive vascular access device is the backbone of the modern
इन पेशेंट केयर ना। तो इसमें अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके के कैथीटर्स डालते हैं। जैसे कि पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथीटर, ये सबसे कॉमनली यूज होता है। और इसको हम 72 to 96 आज तक इसको रख सकते हैं। इसके बाद रिसाइड द कैनुला को चेंज करके हम दूसरे जगह पर लेते हैं। फिर है सेंट्रल वेनस कैथीटर। सेंट्रल वेनस के बेटा जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, 14 डेज 21 डेज तक इसका हमने प्रॉपर नर्सिंग केयर करें तो इसको हम पेशेंट के में रख सकते हैं। फिर आर्टेरियल लाइन, जिन पेशेंट को कंटिन्यूअस बीपी मॉनिटरिंग या आर्टेरियल ब्लड गैस की आवश्यकता होती है, वैसे पेशेंट को हम आर्टेरियल लाइन, वैसे पेशेंट को आर्टेरियल लाइन डला होता है। फिर है पिक लाइन। पिक लाइन ये लंबे ड्यूरेशन जिन पेशेंट को कीमो वगैरह चल रहा होता है या टीपीएन जिनको कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक सब देनी होती है तो उनको पिक लाइन डला होता है। तो इसका केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पल्मोनरी आर्टरी केयर। Advanced hemodynamic monitoring device inserted through the central venous into the pulmonary artery, measuring cardiac output, pulmonary pressure, and mixed venous oxygen saturation in critically ill patient. फिर है डायलिसिस कैथीटर। जिन पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता होती है उनको डायलिसिस कैथीटर डाला जाता है। तो ये सब वैस्कुलर एसेस डिवाइस है। इनका केयर प्रोटोकॉल के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन है जिसको हम बहुत इजी वे में लेते हैं लेकिन इसका केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथीटर। व्हाट इज पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथीटर? Peripheral intravenous catheter is a short flexible tube inserted into the peripheral vein to establish vascular access. इसका केयर क्या क्या है इसको एक एक करके हम जानेंगे। जैसे सिस्टमेटिक असेसमेंट, इसमें कि कैथीटर साइट को असेसमेंट करना। फिर स्क्रब द हब, प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग मैनेजमेंट, क्लोज सिस्टम एक्सटेंशन, फ्लशिंग एंड लॉकिंग। सब डिटेल पीआईबीसी असेसमेंट एंड मेंटेनेंस। असेसमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि पेन at the insertion site and around the insertion site, क्योंकि पेशेंट को कोई पेन तो नहीं है। यदि हम पेन का स्केल 10 रखें उसमें से पेशेंट 3 कंप्लेन कर रहा है तो कैनुला को हम रिसाइट करेंगे। फिर इन्फ्लामेशन साइट, इंस्पेक्ट फॉर रेडनेस, स्वेलिंग एंड हार्डनेस। और इसका एक विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर आता है। अगर वो स्कोर 2 से ऊपर है तो कैनुला को रिसाइट करेंगे। फिर है डिस्चार्ज एंड लीकेज। तो जहाँ का इंसर्शन साइट के अराउंड देखें कोई डिस्चार्ज तो नहीं है और या लीकेज फ्लूइड लीक तो नहीं कर रहा है या डिस्चार्ज है तो पूरे डिस्चार्ज तो नहीं है, और ऐसा कुछ भी हमें दिखता है तो उसको नोट डाउन करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, कैनुला पे रिसाइट करेंगे। फिर इंसर्शन डेट ट्रैकिंग। जैसे जिस पेशेंट का कैनुला कंटिन्यू यूज हो रहा है तो उसमें तो हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का यदि कैनुला को देख रहे हैं और उसमें कोई भी दिक्कत होता है तो हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जिन पेशेंट का बीच बीच में हमें कैनुला कम यूज होता है तो वैसे में हमें इसका डेट का ध्यान रखना है कि कैनुला कब डाला गया था। इसके ये 72 to 96 आवर्स पे कैनुला को हम चेंज करें। फिर है स्क्रब द हब टेक्निक। हब क्या है? जो कैथीटर्स के साथ एक कनेक्टर होता है उस जिसके एंड से हम सिरिंज, आईवी सेट वगैरह जो इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर, उसे को हब कहते हैं। अब हब जो है वो कंटामिनेशन का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, तो उसमें उसके इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने के लिए हम हब को अच्छे तरह से स्टेलाइज करेंगे। तो इसका स्टेलाइज करने के लिए परफॉर्म हैंड हाइजीन, वियर स्टेराइल ग्लव्स
take a gauze with 70% isopropyl alcohol and twisting motion में 15 सेकेंड के लिए उसको क्लीन करेंगे और 15 सेकेंड के लिए उसको ड्राई होने देंगे। अब है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इज एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग एक तो अच्छे से सिक्योर होता है, फिर वो कोई भी उसमें एबनॉर्मलिटी यदि इंसर्शन साइट पे है या अराउंड द इंसर्शन साइट वो हमें दिखता है, और पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने में भी इजी रहता है। जैसे उस पे जैसे कोई वाटर गिर जाए तो वो गीला नहीं होता है। इस तरह से ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग और उसके लगाना भी आसान होता है और रिमूव करना भी इजी होता है। तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इसका अच्छे से करेंगे। और यदि कोई लीकेज हुआ है या फिर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग हट गया है तो उसके ड्रेसिंग को चेंज करेंगे। फिर है आईवी फ्लशिंग एंड लॉकिंग टेक्निक। IV flushing, intravenous flushing maintain catheter patency by clearing the lumen of blood medication residue and preventing thrombus formation. Locking maintains patency between intermittent using by filling the catheter with solution under positive pressure, preventing blood reflux that can cause occlusion. और फ्लशिंग में है कि कब कब हमें फ्लश करना है, प्री मेडिकेशन फ्लश, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पोस्ट मेडिकेशन फ्लश। फ्लश हम जनरली नॉर्मल सेलाइन से करते हैं या डिस्टिल वाटर से नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करते हैं, और 5 ml सिरिंज से ही फ्लश करना चाहिए, क्योंकि कैथीटर में ज्यादा प्रेशर हम यूज ना, जेंटल प्रेशर यूज करके कैनुला को फ्लश करना चाहिए। व्हेन टू फ्लश, before medication or fluid administration, after medication or fluid administration, after blood sampling through the catheter, between incompatible medication, every 8 to 12 hours for intermittent access device, after blood products transfusion when catheter is not in use. फिर इसको लॉकिंग, जो कैथीटर का हब है उसको हमेशा जनरल भाषा में हम उसको स्टॉपर बोलते हैं, उससे क्लोज करके रखते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर न जाए और ब्लड स्ट्रीम का कारण न बने। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल वेनस कैथीटर पे। सेंट्रल वेनस कैथीटर, a central venous catheter is a long flexible tube inserted into a large central vein, typically the internal jugular vein, subclavian femoral vein, with the catheter tip positioning in the superior or inferior vena cava near the right atrium. ये सेंट्रल वेनस कैथीटर जो है वो अलग अलग ल्यूमेन में आता है, जैसे पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल वेनस कैथीटर जैसे सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन, क्वाड ल्यूमेन। लेकिन जो मोस्ट कॉमन आईसीयू पेशेंट में यूज होता है वो होता है ट्रिपल ल्यूमेन, क्योंकि ट्रिपल ल्यूमेन में से हमें जैसे कि पेशेंट का सीबीपी मॉनिटरिंग करना है, कोई आइनोट्रॉप्स चलाना है, मेडिकेशन देना है, तो ऐसे में हम ट्रिपल ल्यूमेन के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये सेंट्रल वेनस जो ट्रिपल ल्यूमेन है इसका फिगर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसमें 3 पोर्ट होते हैं, प्रोक्सिमल पोर्ट, मीडियल पोर्ट और डिस्टल पोर्ट। डिस्टल पोर्ट जो होता है कैथीटर का एंड होता है। तो जैसे हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि डिस्टल पोर्ट से हम लोग सीबीपी मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद मीडियल पोर्ट से जो भी एनोट्रॉप्स देना होता है वो देते हैं, जो हमारे आईसीयू में जैसे यूज करते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको। और प्रोक्सिमल पोर्ट से सैम्पलिंग है या फिर जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह देना होता है उसको देते हैं। और ये पोर्ट यूज सबसे पहले कि सेंट्रल वेनस को हैंडल करते समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना होता है।
और इसमें जो जैसे कि ट्राइवे लगाकर आगे हम जो एसेस लेते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि जैसे कि जिस पोर्ट से नॉरेट जा रहा है उसको उसमें फ्लैग लगा के रखें, ताकि वो पता चले कि इससे नॉरेट जा रहा है, इससे पोटेशियम जा रहा है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कौन मेडिकेशन किससे कॉम्पेटिबल, जैसे कि कैल्शियम के साथ बाइकार्बा इन्फ्यूजन नहीं लगाएंगे, और ये सब ध्यान रखना है। और जैसे कि जिस लाइन से नॉरेट जा रहा है और नॉरेट पेशेंट का बीपी सेटल हो गया है और नॉरेट बंद हो गया है, तो वो लाइन को यदि हमें रिमूव करना है तो हम ब्लड को ड्रॉ करके और फिर उसको सलाइन से फ्लश करके तब लॉक करके छोड़ेंगे। नॉरेट है या पोटेशियम है या ऐसी दवाइयां हैं, मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट को फ्लश होने से हार्म करेंगी, तो उसका हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उसको ड्रॉ करके और डिस्कार्ड करके और नॉर्मल सलाइन से पुश करके लॉक करके तब रखें। फिर है कि मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट, इंटरनल सीबीपी का सीबी सेंट्रल वेनस कैथीटर का मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट जो होता है वो राइट जुगुलर वेन होता है, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। ऐसे जो वेन है, राइट जुगुलर वेन, लेफ्ट जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन, फीमोरल वेन, राइट फीमोरल, लेफ्ट फीमोरल, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड साइट जो होता है वो राइट जुगुलर वेन होता है। और लीस्ट प्रिफर्ड साइट जो होता है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन होता है, क्योंकि वहाँ न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेज होते हैं। फीमोरल वेन भी कम ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के चांसेज होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइन रीजन में इन्फेक्शन के चांसेस। फिर है इंडिकेशन, administration of medication that needs central access, vasopressor, inotropes, chemotherapy drug, and long-term antibiotic. फिर है total penetration, volume resuscitation, difficult venous access, जिस पेशेंट को आईवी लाइन मिलना बहुत मुश्किल हो और उन्हें बार बार एंटीबायोटिक देना है, तो ऐसे पेशेंट को भी सेंट्रल लाइन डालते हैं। फिर है सीबीपी मॉनिटरिंग। Why central line care is important? To prevent central line associated blood stream infection, CLABSI, to maintain catheter patency, to prevent mechanical complication, to ensure accurate treatment delivery, to reduce patient discomfort and anxiety. नर्सिंग केयर फॉर सेंट्रल वेनस कैथीटर, इसमें है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, इंस्पेक्ट इंसर्शन साइट फॉर infection, redness, swelling, drainage, verify secure dressing and proper catheter position, assess patient comfort and systemic sign assessment. और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग जो है वो वहाँ जो इंसर्शन साइट है उसकी ड्रेसिंग तो नहीं हट गई है, या फिर उसका सूचर, यदि सूचर निकल गया है तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और इंसर्शन साइट के पास कोई स्वेलिंग या कोई लीकेज हो तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। फिर एसेप्टिक टेक्निक, जब भी सेंट्रल लाइन को हमें टच करना है, परफॉर्म स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। चेंज ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी। फिर मेंटेन पेटेंसी, इंश्योर ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ infusion aspirations, perform regular flushing per protocol, checking for blood return and absence of resistance. फिर सीबीपी लाइन मैनेजमेंट, सीबीपी लाइन सेंट्रल वेनस प्रेशर जो हम लोग मॉनिटर करते हैं उसका ध्यान रखना है कि उसका जो ट्रांसड्यूसर हो वो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पे हो, और अपने शिफ्ट में एक बार जीरो करना है। और पेशेंट का सीबीपी जब हम मेजर कर रहे हो तो एक्यूरेट, जब वो सुपाइन पे पेशेंट का जब एक्यूरेट सीबीपी लेना है तो उसको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेंगे, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में करके उसको जीरो करेंगे और फ्लश करके जीरो करेंगे
और तब उसका देखेंगे कि ग्राफ उसका सही है कि नहीं। फिर है सिक्योर कनेक्शन। पेशेंट जो सीबीपी लाइन है उसमें जो कनेक्शंस हैं वो टाइटली बंद हैं कि नहीं, क्योंकि उससे बैक फ्लो हो सकता है। और उसमें ये क्लोज सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं कि पोर्ट ओपन हो, उससे क्लैप्सी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कंफर्म ऑल connectors are tightly secured to prevent dislodgement or air embolism. Use clear labeling to avoid medication errors and streamline administration. मैंने पहले ही बताया कि उसमें जो भी इस तरह के जैसे नॉरेड है, पोटेशियम है या फिर वैसोप्रेसिन है, ऐसे जो ड्रग्स है सब में फ्लैग लगा के जरूर रखेंगे, क्योंकि ये सब जो ड्रग है पेशेंट के लिए जितना जीवनदायक है उतना ही घातक भी हो सकता है, तो इसमें हम फ्लैग लगा कर रखेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन विजिलेंस, continuous monitoring for sign of eclampsia, thrombosis, air embolism, catheter migration, pneumothorax, rapid identification and response for crucial for patient safety. फिर नेक्स्ट है नर्सिंग केयर ऑफ arterial line. An arterial line is a thin catheter inserted into an artery, most commonly in the radial artery, but also the brachial or femoral artery. It provides continuous real-time blood pressure monitoring and allows for frequent arterial blood gas sampling without repeated needle stick. Arterial lines are crucial in critically ill patients during major surgery or in condition requiring precise hemodynamic management. Continuous monitoring. Ensure the transducer level is the phlebostatic axis for accurate reading. Continuously monitor and blood pressure waveform are for damping or anomalies and assess the patient's clinical response to change. कंटिन्यूस मॉनिटर करना है कि पेशेंट का बीपी जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। आर्टेरियल का ग्राफ देखेंगे कि ओवर डैम्प्ड या अंडर डैम्प्ड तो नहीं है। इसके लिए एक स्क्वाड वेव टेस्ट भी होता है, उसको देखेंगे। और उसके बाद है साइट असेसमेंट। Regularly inspect the insertion site for sign of bleeding, hematoma formation, infection, redness, swelling, warmth, drainage or distal ischemia, जैसे pallor, numbness, tingling, decreased capillary refill. फिर maintain patency. Ensure a continuous flush system is running correctly to prevent clot formation. Zero the system to atmospheric pressure every shift or when repositioning the patient to maintain accuracy. इसका मैं वीडियो भी आगे दिखाऊंगी कि आप जीरो कैसे करना है। फिर है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। Adhere to strict aseptic technique during insertion, dressing change and blood sampling. Use sterile dressing and change them according to hospital policy. ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए आप जब भी कोई भी आईवी लाइन, चाहे वो सेंट्रल लाइन हो या आर्टेरियल लाइन हो, हमेशा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करें। और ड्रेसिंग यदि सॉइल हो तो उसको ड्रेसिंग को चेंज करना है, या आसपास का जो एरिया हो वो कोई इन्फेक्शन कॉज न करे, इसका भी ध्यान रखना है। फिर अलार्म मैनेजमेंट। Set appropriate high and low blood pressure alarms based on the patient's condition. Respond promptly to alarm to identify and address potential issue, preventing adverse events. Patient comfort. Educate the patient about the arterial line and its purpose. Ensure the extremity with a line is comfortably immobilized to prevent dislodgement or injury, and address any pain or discomfort. और उसमें रखो, इमरजेंसी ड्रग्स वाले एनएस जो है वो कनेक्ट करूंगी। तो इसके लिए है कि इसका जो टिप है ये यहाँ
पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसलिए इसको टच नहीं करेंगे। इसका कवर डिस्कार्ड करेंगे और ये जो आर्टेरियल लाइन इसे हम निकाल कर इसको बिना टच करते हुए इसको अंदर ऐसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद प्रेशर बैग के अंदर इसको लगाएंगे। प्रेशर बैग में ये हुक होता है, इसमें इसको ऐसे हैंग करेंगे, इसको हैंग करके और इसमें इसको इन्फ्लेट करेंगे। कर दीजिए। प्रेस हाँ 250 तक ग्रीन वाला है पेन। 300 mm ऑफ इसको इन्फ्लेट करेंगे कि इसका ये जो है ये 300 तक दिखना चाहिए। जब इसमें एयर पूरा पुश हो जाएगा तो ये ऊपर तक आ जाएगा। 200 से 300 के बीच में रखना है। देखिए ऊपर आ रहा है ये ग्रीन वाला दिखा रहे हैं अभी। हाँ ये देखिए ये ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब ये सेट है। हाँ ये देखिए 300 तक इतना हम फिल करेंगे। इससे है कि आर्टेरियल में क्लॉट नहीं बनेगा और ये लाइन जो पेटेंसी इसकी मेंटेन रहेगी और आर्टेरियल का बीपी भी सही आएगा। प्रेशर बैग है, इसमें फ्लूइड जो है कि वो कम हो गया है। फ्लूइड कम होने से वो आर्टेरियल लाइन का जो ब्लड है वो क्लॉट हो सकता है या वो डैम्प हो सकता है। इस आर्टेरियल लाइन को डैम्प होने से बचाने के लिए इसमें प्रॉपर सलाइन होना चाहिए और प्रॉपर प्रेशर भी होना चाहिए। तो ये प्रेशर बैग का मैं NS जो नॉर्मल सलाइन है इसको मैं चेंज करने जा रही हूँ। इसका ये सिस्टम होता है, ये लॉकिंग है, इसको हम ओपन करके इसका पहले एयर निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको ये जो NS है उसको हटाकर कर दीजिए। बंद करना। आगे नहीं डलता वो सबका अपना लाइन लगा हुआ है। इसको बटरफ्लाई ड्रेसिंग से फिक्स किया गया है ताकि ये ज़्यादा इधर उधर मूव ना करे और फिर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग किया गया है इसके। और इससे इस प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन के सहारे इसको यहाँ फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पे इसका ट्रांसड्यूसर फिक्स किया गया है ताकि पेशेंट का जो यहाँ आर्टेरियल बीपी मॉनिटरिंग है वो एक्यूरेट आए। अब हमें इसका अपने शिफ्ट में या फिर जो लाइन है उसका ग्राफ सही नहीं आए तो हमें अपने शिफ्ट में एक बार जीरो करना है और लाइंस का ओवर डैम्प्ड या अंडर डैम्प्ड हो तो पेशेंट का जो है या टेलन जीरो करना पड़ता है। जीरो करने के लिए ये पेशेंट का जो ट्रांसड्यूसर है इसको ओपन टू एयर करेंगे और ये इसका जो ये पॉइंट है इसको इस पेशेंट की इस तरफ रखेंगे और फिर मॉनिटर में जो है कि ये जीरो करेंगे। आर्टेरियल लाइन सॉरी आर्टेरियल जीरो, ये देखिए ये जीरो हो गया। उसके बाद ये जो है इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और फिर इसका जो है इसको ऐसे क्लोज कर। नेक्स्ट लाइन है पीक लाइन। Peak line is a long, thin tube inserted in a large peripheral vein and threaded through the vein to rest above at right atrium of the heart. The other end of the catheter lays outside of the body, which has injection port. Indication. इसका इंडिकेशन होता है मोस्टली कीमोथेरेपी, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड सैम्पलिंग। रीनल फेल्यूर में इसको जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी जो होता है वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कि फिस्टुला वगैरह बनाने के लिए।
इंसर्शन साइट इसका होता है ब्रैकियल, सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन। केयर ऑफ पिक लाइन, ये अलर्ट, A for apply transparent dressing, suture integrity and catheter position. L for liner patency to be checked. E, ensure closed system is followed. Re-examine for dress, time and date for insertion of peak line and dressing change. Replacement interval. Dressing should be changed when the dressing become damp, lodged or soiled. Dressing site preparation, alcoholic chlorhexidine is the preferred solution for the preparation for dressing. Remove skin solid with alcohol or acetone. Remove blood or ooze from catheter insertion site with normal saline. Peak line sampling follows infection control protocol. Scrub the hub मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि clean with wear sterile gloves, clean the hub with isopropyl 70% isopropyl alcohol in twisting motion for 15 seconds and let it dry for 15 seconds. Scrub the hub. And second, फिर है aspirate and discard 10 ml of blood. फिर take the sample as per requirement, जितना हमें जरूरत है उतना लेंगे. फिर flush the with 10 ml normal saline. Flushing. Flush catheter immediately after placement. With prior and after infusion, fluid infusion. Line should be flushed after dressing at least once weekly when it not in use. Use 10 ml syringe to avoid excessive pressure and catheter rupture. SAS peak line flush. Saline flush first. Administer any medication following flush. Saline flush after administering any medication. Heparin flush as the final step. Technique: flushing and locking. A. Assess the status and functioning of the vascular access device to confirm location and patency. Clear medication and solution from the vascular access device to avoid any incompatibilities. Lock the vascular access device during period of non-use of it. Peak line embolism. Catheter dislodgement, deep vein. Peak line complication, catheter dislodgement, deep vein thrombosis, phlebitis, air embolism, infection of the site of the insertion site, bloodstream infection, pain, catheter fracture and migration, superior vena cava syndrome. Peak line nursing responsibility. ये हमें क्या क्या ध्यान रखना है? Don't manipulate the catheter. Don't touch any unstable surface after wearing sterile gloves. Check for sign of phlebitis. Assess the site. Flush the line. Remove the unnecessary line. जो लाइन जैसे एंटीबायोटिक जा रहा है या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जा रहा है, जो चीज बंद हो गया है उस लाइन को डिस्कनेक्ट करके फ्लश करके छोड़ेंगे. Close the port immediately after completion of medication and scrub the hub. ये हमारा वैस्कुलर एसिस का जो मेन वैस्कुलर एसिस था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया. अब है मैं थोड़ा शॉर्ट में एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में भी डिस्कस करूंगी. एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला जाता है पेशेंट में. इसका इंडिकेशन बहुत सारे हैं, मैं ब्रीफ में इसको बताऊंगी. मेंटेनिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटीग्रिटी एंड पेशेंट सेफ्टी रिक्वायर्ड diligent systematic nursing care. This ensure effective ventilation, prevent complication and promotes patient comfort. सबसे
पेशेंट जो एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ है, इसे हमें सबसे पहला देखना है कि एयरवे पेटेंसी मेंटेन हो और ट्यूब पोजीशन पे हो। रेगुलरली वेरीफाई ट्यूब प्लेसमेंट। ट्यूब प्लेसमेंट हम कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए पेशेंट का ट्यूब हमें 22 सेंटीमीटर पे फिक्स करना है, तो 22 सेंटीमीटर जो है उसको टीथ के पास होना चाहिए। तो वो हम अपने शिफ्ट में एक बार देखेंगे, या पेशेंट का जो पोजीशन, क्रिटिकली इल पेशेंट है, पेशेंट का जो पोजीशन करा रहे हैं तो भी पेशेंट का पोजीशन कराने के बाद भी देखेंगे कि ट्यूब इधर उधर तो नहीं हुआ है, उसका सही जगह प्लेसमेंट है या नहीं। फिर सिक्योर ट्यूब प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन। इसका हमें सभी लाइन में ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटल रिमूवल किसी लाइन का ना हो, जितने भी इन्वेसिव लाइन है। और एंडोट्रैकियल ट्यूब पे खास ध्यान रखना होता है कि ये पेशेंट का इजी टू एसेस होता है, पेशेंट का हाथ सीधे एंडोट्रैकियल ट्यूब के पास ही जाता है। तो ऐसे में हम पेशेंट को फिजिकली रिस्ट्रेन करके रखेंगे, जैसे कि हैंड रिस्ट्रेन आता है, उसको हाथ बांध के रखेंगे, या फिर डॉक्टर जब कहें कि मिडाफेंटा केमिकली सेडेट करके, मतलब पेशेंट को सेडेट करके रखेंगे। मिडाफेंटा यदि डॉक्टर बोल रहे हैं चलाने के लिए, तो एक्सीडेंटल रिमूवल से बचाने के लिए हम इसको प्रायोरिटी लेते हुए पेशेंट का मिडाफेंटा चला के रखेंगे, ताकि एक्सीडेंटल रिमूवल ना हो। फिर है सक्शनिंग प्रोटोकॉल। सक्शनिंग प्रोटोकॉल में है कि पेशेंट को जब नीड हो तभी सक्शन करना चाहिए। जब जब SpO2 कम होने लगे, या पेशेंट का वेंटिलेटर में पीक एयर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे, या फिर सिक्रेशन हमें दिख रहा है कि पेशेंट का सिक्रेशन है, या फिर साउंड आ रहा हो कि हमें इसको सक्शन की जरूरत है, तो उस समय हमें सक्शन परफॉर्म करना है। और सक्शन परफॉर्म करने समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। ऐसे में मतलब एक नर्सिंग स्टाफ की और सहायता लेनी है, ताकि वो सारा सामान ओपन करके दे और हम स्टेरिलिटी मेंटेन करते हुए पेशेंट का सक्शन कर सके। तो इस यूज स्टेराइल टेक्निक है। और फिर सक्शन करने से पहले पेशेंट का वेंटिलेटर से प्री ऑक्सीजनेशन करना, फिर सक्शन करने के बाद पोस्ट ऑक्सीजनेशन भी करना, और सक्शन के का जो है 15 सेकंड तक जाते हुए फिर बाहर आ जाना है। ऐसा नहीं कि सक्शन कैथीटर ज्यादा देर तक पेशेंट के ट्यूब में नहीं रखना होता। फिर एक कफ प्रेशर मैनेजमेंट। पेशेंट का जो ईटी ट्यूब का जो कफ होता है, उसको भी अपने शिफ्ट में एक बार देखना है कि यदि पेशेंट का प्रेशर का कफ ज्यादा है तो वो ट्रैकियल इंजरी कॉज करेगा, अगर कम है तो वो ठीक से वेंटिलेट नहीं होगा, या एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे में है कि कफ प्रेशर देखने के लिए एक डिवाइस भी आता है, लेकिन वो डिवाइस हम हर शिफ्ट में यूज कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम एक पेशेंट का जो ईटी ट्यूब का कफ प्रेशर है, वो हैंड से ही चेक करके पता लगा लेते हैं कि पेशेंट का ईटी ट्यूब में कफ में प्रेशर सही है या नहीं। यदि प्रेशर में कफ में प्रेशर कम है, तो उससे हम और एयर डालकर उसका प्रेशर मैनेज करेंगे। और अपने शिफ्ट में एक बार कफ का प्रेशर जरूर देखेंगे। फिर है ओरल एंड माउथ केयर। प्रोवाइड ओरल केयर every 2 to 4 hours. Use chlorhexidine if ordered to prevent BA ventilator acquired pneumonia. Keep lip moist and mouth clean. Suctioning oral secretion frequently. फिर है वेंटिलेटर एक्वायर्ड न्यूमोनिया प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। मैं इसको ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करूंगी। एलिवेट 30 to 45 डिग्री पेशेंट हेड, implement daily sedation interrupted and assess readiness for weaning, and adhere to strict hand hygiene, use closed suction system। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जिस पेशेंट का पीप हाई हो, उसको
पेशेंट का यदि पीप जिन पेशेंट को हाई रखना है उनको क्लोज सक्शन सिस्टम यूज करना चाहिए। क्लोज सक्शन कैथीटर आता है जो अवेलेबल होता है HRF में, उसको उसे यूज करना चाहिए ताकि पेशेंट को पीप अगर हाई हो तो उसको डिस्कनेक्ट करने से बचे। फिर है पेशेंट कंफर्ट एंड मॉनिटरिंग। Assess patient pain, anxiety, and sedation need. Avoid unnecessary restraint. Continuously monitor vital sign, ventilator setting, and patient response. फिर केयर ऑफ राइल्स ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। इस नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, Ras tube, commonly known as nasogastric tube, is a flexible tube passed through the nose, down the esophagus, and into the stomach. Proper care is essential to ensure patient safety, tube patency, and effective delivery of nutrition and medication while preventing complication. इसमें एक रास ट्यूब से यदि हमें फीड देना है तो चेक द प्लेसमेंट, सबसे पहले प्लेसमेंट चेक करना है कि वो सही पोजीशन पे है कि नहीं। इसके लिए हम 10 ml का सिरिंज लेंगे, उसमें एयर लेकर पेशेंट का जो ये रास ट्यूब का जो एंड है उसमें पुश करेंगे और एपिगैस्ट्रिक के पास स्टेथोस्कोप रखकर सुनेंगे। यदि पुश की साउंड आ रही है इसका मतलब कि रास ट्यूब अपने सही पोजीशन पे है। फिर दूसरा मेथड है रास ट्यूब चेक करने का कि एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें कैथीटर ये रास ट्यूब के एंड को रखेंगे। यदि उसमें एयर बबल आ रहे हैं तो वो अपने पोजीशन पे नहीं है, और एयर बबल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो अपने पोजीशन पे है। फिर एस्पिरेट करके देखेंगे कि उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट है तो उसको वो अपने पोजीशन पे है। तो confirm the placement feed before every feed and medication. As observe the length and marking of the nostril. रास ट्यूब में निशान बना होता है वो सही मार्क पे है कि नहीं। एक से कंफर्मेशन करा सकते हैं, लेकिन जनरली जो ICU में हम लोग ऐसे ही इन्हीं तीनों से कंफर्म करते हैं कि पेशेंट का रास ट्यूब सही पोजीशन पे है कि नहीं। मेंटेन ट्यूब पेटेंसी। जब भी पेशेंट को फीड दें उसके बाद 20 to 30 ml से पेशेंट का जो रास ट्यूब है वो जरूर फ्लश करना चाहिए। और पेशेंट फीड देने के बाद भी और मेडिकेशन देने के बाद भी, कोई मेडिकेशन भी होता है वो पेशेंट का रास ट्यूब तुरंत ब्लॉक करता है, जैसे केबाइंड सैचेट देने के बाद तो 50 ml से फ्लश करना चाहिए रास ट्यूब को, क्योंकि वो तुरंत बहुत जल्दी रास ट्यूब में वो जम जाता है। फिर है फीडिंग केयर। पेशेंट को फीड देने से पहले पेशेंट का पोजीशन अपराइट रखना है, चेक। और फीड देने से पहले हमने जो प्रायर फीड दिया है वो पेशेंट एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसको भी देखना है कि जो पहले फीड दिया गया है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए एस्पिरेट करके देखेंगे वो किस कलर का है, कितना अमाउंट हमने दिया था, कितना अमाउंट आया है, ये सारा कुछ नोट करके डॉक्टर को बताएंगे कि ये मान लीजिए कि हमने 4 घंटे पहले 200 ml फीड दिया है। अगर वो 100 ml से ऊपर आ रहा है तो फीड तो होल्ड करेंगे और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करेंगे। अगर फीड नहीं आ रहा है तो फीड कंटिन्यू करेंगे। पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एस्पिरेशन, इस सब के लिए वॉचफुल रहेंगे। नेजल एंड ओरल केयर। आज पहले हम ड्रेसिंग जो होता था पेशेंट के नोज पे ही फिक्स करते थे, लेकिन अभी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से हम पेशेंट का जो रास ट्यूब है उसको चिक पे फिक्स करते हैं, जिससे कि पेशेंट का नोज भी क्लीन रहता है और हम आसानी से देख भी सकते हैं कि रास ट्यूब अपने सही जगह पे है या नहीं। फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यूज लिक्विड मेडिकेशन व्हेनेवर पॉसिबल। क्रश टैबलेट्स ओनली इफ जो टैबलेट होते हैं उसको क्रश करके डिसॉल्व करके तब रास ट्यूब के थ्रू देना है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ईच मेडिकेशन सेपरेटली प्लस ट्यूब बिटवीन मेडिकेशन टू प्रिवेंट interaction and blockage. Maintain head end elevation at all times.
फिर केयर ऑफ हॉलिस कैथीटर. Proper management of Hollis catheter is crucial for preventing infection, maintaining patency, ensure patient comfort, adherent to a strict protocol, minimize risk, and promotes optimal patient outcomes. सबसे पहले aseptic technique and hand hygiene. Maintain a sterile technique during insertion. Always perform meticulous hand hygiene before and after any contact with the catheter or drainage system to prevent pathogen transmission. Perineal and catheter care. Provide daily perineal care with soap and water, cleaning around the catheter insertion site and along the catheter tubing, always moving away from the meters. Repeat after bowel movements. Drainage system management. Ensure the drainage bag is always kept below the level of the bladder to prevent reflux. Keep tubing free of kink and secure the bag of the floor. Empty the bag regularly before it becomes full. Catheter securement. Secure the catheter to the patient thigh or lower abdomen using a catheter strap or adhesive tape. This prevents movement, urethral traction, and irritation. Monitoring for complications. Regularly assess for sign of urinary tract infection, as a fever, cloudy urine, dysuria, suprapubic pain, catheter blockage, leakage, or discomfort. Promptly address and change or inform to the doctor. Patient education. Educate the patient and family about the purpose of the catheter, proper hygiene practice, and sign of potential complication to report, empowering them in their care. Next, care of thoracic drain. Thoracic drains, also known as chest tube, are critical for managing pleural effusion, pneumothorax, and hemothorax. Vigilant care ensuring effective drainage, lung re-expansion, and prevention of complication like infection or tension pneumothorax. Maintain system patency. Keep the drainage unit below chest level and ensuring tube is free kink. Securely connect all components and empty the collection chamber as per protocol. Period dressing and site care. Use a strict aseptic technique for dressing change. Monitor the insertion site for sign of infection such as redness, swelling, or purulent discharge. Monitor drainage and leakage. Regularly observe drainage volume, color, consistency. Check the water seal chamber for continuous bubbling. Indication of an air leak, tiding, and tiddling. ड्रेनेज सिस्टम का जैसे देखना है तो उसका कॉलम मूव कर रहा है कि नहीं, ये हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि कॉलम मूव, पेशेंट के सांस लेने पर कॉलम मूव नहीं कर रहा होता है तो भी हमें डॉक्टर को एक बार बताना होता है इसका कॉलम मूव नहीं कर रहा है, फिर आगे जो उन्हें स्टेप लेना होगा डॉक्टर आगे. फिर assess patient status. Continuous monitoring respiratory rate, effort, and breath sound. Assess pain level and provide appropriate analgesia to promote comfort and lungs expansion. जो भी एनाल्जेसिया उन्हें प्रेस्क्राइब हो उसको देंगे, पेशेंट को देंगे ताकि वो अच्छे से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर सके और पेशेंट का लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर सके. Manage complication. In the case of accidental disconnection, immediately clamp the tube near the chest wall and place the open end in sterile water to prevent air entry. Resecure. Encourage mobility. Assist the patient with repositioning and ambulation as tolerated. Ensure the drain system does not restrict movement and remains upright. केयर ऑफ थोरेसिक ड्रेन में सबसे हमें मुख्य बात का ध्यान रखना है कि उसका जो टिप है वो
वाटर के जो उसमें एक लेवल रहता है वाटर का, उतना तक वाटर मेंटेन रहे और उसका टिप जो है वो पानी ये नॉर्मल सलाइन में डीप रहे। और यदि डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें सक्शन लगाना है थोरेसिक ड्रेन के चैम्बर में, तो कितने प्रेशर पे रखना है ये भी उनसे पूछकर और उसका देखेंगे कि सक्शन हम मतलब लगा हुआ है या नहीं, और जितने प्रेशर पे हमें लगाना है उतने ही प्रेशर पे लगाएंगे। और सक्शन यदि ड्रेनेज बैग यदि खाली करना है तो उससे उस समय हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए जो उसका ट्यूबिंग है उसको क्लैंप करके, ताकि कोई एयर एंट्री अंदर ना हो। इसके इन बातों का ध्यान रखते हुए हम बैग को खाली करेंगे और फिर उसको नॉर्मल लाइन से जितना वाटर लेवल मेंटेन करके। थैंक यू।